I mean, if you've asked me such an elaborate question, allow me to speak for a minute. I think the whole idea was to shock the audience with a new me, Neil 2.0. I went through a massive transformation. Yeah, I had gained a lot of weight for one of my films, post which then, of course, the COVID hit. And but when I wanted to come back on screen, I wanted to come back in the same avatar that my fans expect me to be, the cool, dapper. But apart from that, when it came to a music video, I wanted to do something that really stands out, not this typical run-of-the-mill music video with glitz and glory and glam, but something that really kind of resonates with people, their emotions, and a story that might kind of linger for a long time. And then, of course, Rashid sir, Ankit Tiwari ji's beautiful voice, Rashid sir's music direction, and of course, Adhyayan Suman's direction over all of this really catapulted into making the song much bigger. I had the opportunity of working with the ever so beautiful Shreya, and I was very privileged and honored that Music Garage considered me worthy of it. In overall, I think the uniqueness of Tu Meri Aashiki is that it's a three-part, film, I would call it. This is the first of its kind. पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो में हम एक फ़िल्म की तरह उसे दर्शा रहे हैं, उसे आपके पास पहुंचा रहे हैं, और इसका ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट इसका होगा, फिर तीसरा पार्ट भी होगा. तो तीनों की अगर कहानियाँ एक साथ जोड़ के देखें तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म. बट म्यूज़िक की इंडस्ट्री में शायद ये पहली बार हो रहा है, और उसका ये एक्स फैक्टर मुझे अट्रैक्ट कर गया, और आई एम वेरी हैप्पी दैट people are loving it. Great response. We are already touching some great numbers, and yeah, nervous. I think it's Shreya's debut, but I think I'm as nervous as her. Yeah. I know. This is my grandfather's. I know this is my grandfather's centenary year. मुकेश जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 100 साल पूरे हो गए हैं, और उन्हें गए हुए करीबन 50 साल हो चुके हैं. फिर भी आज की युवा पीढ़ी तक भी आज भी मुकेश जी को याद रखती हैं, और उनकी वजह से उनकी सारी पीढ़ियों को, उनके सारे जनरेशन्स को इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त दी है. तो जाहिर सी बात है कि जब उनका सेंटनरी ईयर है तो म्यूज़िक को लेकर कुछ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता था. तो जहाँ मेरे पिताजी वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं उनके शोज़ और उनके गानों को लोगों के दिलों तक पहुँचाने के लिए, तो मेरा एक बतौर एक्टर की हैसियत से फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी म्यूज़िक को लेकर कुछ करूँ. तो एक खोज थी एक ऐसे गाने की, एक ऐसे म्यूज़िक वीडियो की जो शायद आपके दिलों तक पहुँचे. और तू मेरी आशिकी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो ऐसा एक गाना है जो 100% आप सभी के दिलों तक पहुँचेगी. मैं आपको सच बताऊं तो मैं नील की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ जब से मैंने न्यूयॉर्क देखी है और जॉनी गद्दार देखी है. और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, पहले तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट बिलीव, बिकॉज एज अ डेब्यूटेंट इट्स अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद समबडी हु इज़ वर्कड इन 30 फिल्म्स. it is a dream come true debut for me. एंड फिर जब मुझे यकीन हुआ तो मैं नर्वस हुई कि पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूँगी, पता नहीं नील सर खुश होंगे या नहीं. आई डोंट नो इफ ही विल बी हैप्पी विद द She's being very humble or not, but I am telling you, he has made me so secure as a person, as an actor, as a friend. And on set he literally treated me like a child, that just perform, just leave everything from your mind, go ahead, fly, Adhan and I will be your wings. And I was so happy that he's been so kind and so cooperative, and he has, guys, zero air about himself, even after belonging from such a family which is one of the epitome of legacies that we talk about in Bollywood. That's very kind of you, Shreya. Thank you. Compliments right back at her. I'm very privileged and honored to have worked with Shreya. बहुत मुश्किल गाना है, 6 मिनट में बहुत कुछ आप तक पहुंचानी है बातें. तो इस 6 मिनट की फ़िल्म मैं कहूँगा, अध्ययन सुमन जी की 6 मिनट की ये फिल्म है,
उस पैमाने पे हम लोगों ने शूट किया है इस गाने को। दुबई में शूट किया है और 50 डिग्री हीट था, तो जहाँ आपकी हीरोइन नॉर्मली अक्सर आपकी वैनिटी वैन्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिमांड करती, श्रेया इतनी ही कोऑपरेटिव थी और उतना ही दमदार परफॉर्मेंस भी दिया है श्रेया ने। और मैं मानना चाहूँगा कि वाकई में ये एक अव्वल नंबर का डेब्यू है, बहुत ही अलग किस्म का डेब्यू। जैसे जॉनी गद्दार में अलग किस्म की एक फ़िल्म करके डेब्यू मैंने की थी, मैं ये इनकी जॉनी गद्दार मानता हूँ। ओह सर, ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। एंड आई कैन नॉट वेट टू वर्क विद हिम इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बिकॉज मतलब मैं आई एम जिप्ड, बट अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो यू विल बी जस्ट लाइक व्हाट। नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले पार्ट को बहुत प्यार दें, है ना? हाँ, बहुत। जितना हमने इसे बनाने में प्यार दिया है, हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और आप भी इसे उतना ही प्यार दें। एंड यस जी, मेरी मुलाकात मेरे दादाजी से कभी हुई नहीं। मेरे पैदा होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, मगर मेरी दादी के साथ मैं बहुत ज़्यादा ही करीब था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे दादा के बारे में कहानियाँ सुनाते सुनाते वो एक गैप बन गया था और एक मैं अधूरापन महसूस करता था। उन्होंने वो अधूरापन शायद वो कमी महसूस नहीं मुझे होने दी और आज तक मुझे इस बात का बहुत गर्व मैं महसूस करता हूँ कि मुकेश जी का मैं पोता कहलाता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ पहले लोग आते हैं और कहते हैं कि आप मुकेश जी के पोते हैं, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो जाहिर सी बात है मेरा सर वैसे ही झुक जाता है कि मेरे दादाजी को आज भी इतनी इज्जत, इतना प्यार लोग दे रहे हैं। 100 साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हो गए, 50 साल हो गए उन्हें गए हुए, फिर भी आज तक लोग उन्हें इतनी इज्जत, इतना प्यार देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Us, our parents, their parents, our children, everybody is going to love him because How he's a sweet, thank you. legend. मेरा तो उनका एक ही गीत है जो मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब है, वो है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दादाजी ये गाने कितने सुनते हैं आप दिन में? मेरे दादाजी के कौन से गाने कब बंद होते हैं वो आप बताइए। नहीं, दिन में बंद कब होते हैं ऐसा मानिएगा। जैसे घरों में हम पूजा करते हैं और आरती और श्लोक बजाते हैं, हम अपने दादाजी की पूजा करते हैं और हमारे घर में शुरुआत होती है उनके गानों से और हमारी रात होती है उनके गानों से। मुकेश जी के गाने सिर्फ हमारे ही घरों में नहीं, बहुत घरों में जो हैं आज तक उनकी आवाज़ गूंजती है और सदियों सदियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे, उनकी आवाज़ गूंजती रहे। ये तहे दिल से मैं उम्मीद करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ आपसे। बहुत बहुत